भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। दरबार में सभी का स्वागत है। कोई प्रश्न? प्लीज यूज योर माइक। Use your mic. For recording. Pavel has a question about the activation of the free centers. If we should do it in the morning, in the evening, twice a day, once a day. I know you said something about 10 minutes or 15 minutes, but... जी, उसका ड्यूरेशन क्या हो और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो तीनों केंद्र को करने की। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अपने स्वभाव में रहना है। अपना जो स्वयं का स्वभाव है, जो स्वभाव है, उसी में रहना है, उसी तारतम्य में करना है। स्वभाव से अतिरेक में नहीं जाना। उस स्वभाव में करना है कि अगर लगातार 3 घंटे भी करना पड़े तो आप आराम से कर पाएँ। ऐसा नहीं कि 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आप थक जाएं। ऐसा। और किसी का कोई प्रश्न? साधना से संबंधित किसी का कोई प्रश्न? शंका से संबंधित अभी तक के कन्वर्सेशन में कोई Anyone प्रश्न? having any question pertaining to sadhana? Ještě nějakou otázku k sadáně? Máte někdo? Můžu se zeptat, včera jsme to dělali zvlášť, do břicha, pak do jakoby srdeční a máme to dělat takhle zvlášť nebo dohromady? Jako ohum, nebo se soustředit na... A ne, jo, ale soustředit se na každý zvlášť, ale dělat to dohromady. Okay, the question plus minus is, like yesterday you said once you said it's like a sequence, and then we practice for a while, then for a while, and then for a while. So how actually should we do it? Should we stay a little while in then move to or do तीनों की क्रमबद्धता के बारे में सवाल है कि वो किस क्रमबद्ध तरीके Very से किया जाए। It's very easy. शुरू करते हैं नाभि से, दोनों वेरी इजी, दोनों हथेलियां जोड़ के और नाभि में रखनी है ओनली Yes, it could be fragmented. अगर वो प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है कि तो ओनली एंड मा। Very simple. You can fragment it like we fragmented yesterday, but when you become smoother, then it is all 3 processes in the same sequence. Zpočátku to můžete rozdělit, jo, že chvilku jste v chvilku. A potom, jakmile budete trošku zběhlí v té praxi, tak je dobrý a plynulý, tak je dobré to udělat v té jedné sekvenci. Just ऐसे करना, तो उसमें कोई टेक्निकल नहीं है, एकदम इजी। It's so easy. वो जो बाकी हिंदुस्तान के लोग समझ पा रहे हैं कैसे करना, वो ठीक है, इनको सिंपल में ले चलना है। जी, सिंपल रहे, हाँ। वेरी सिंपल। It's a very simple way of executing. It's very simple way of executing. Nehledat tom složitosti, je to velmi jednoduché. और किसी का कोई प्रश्न? Anyone else has any question? Ještě někdo máte otázku k sadáně? No more questions. और प्रश्न नहीं है। आगे बढ़ते। We move forward.
कल हम लोगों ने उठते समय ये तय किया था कि हम लोग इसी के माध्यम से रोगों और कष्टों से कैसे भी मुक्ति पाए। Yesterday, Gurudev, before conclusion, had mentioned that how to get rid of pains and diseases, and that he is going to elaborate further. A včera před koncem Gurudev zmínil, jak se zbavit bolestí a nyní to rozebereme detailně. नकारात्मक स्मृतियों को कैसे नष्ट कर पाएं। And how to destroy the memory reminiscences. A zejména to, jak ty zbytky paměti zcela zničit. एक बात को बहुत मजबूती से समझ लेना है कि किसी भी मानसिक क्रिया का प्रभाव शारीरिक व्यवस्था पर पड़ता है। One thing should be very categorically understood, that any action mentally has a direct reflection on the physical being. A jedna věc je potřeba zdůraznit, že každá akce mentální má přímý impact na fyzické tělo. जैसे अभी हम आपसे कहें कि आंख बंद करें, सभी लोग आंखें बंद करें। For example, when Gurudev asked everybody just to close the eyes, let everybody close the eyes. Když Gurudev vás požádá, abyste zavřeli oči, इमली का ध्यान करें कि इमली आपके सामने है और अब आपने उठा के मुंह में रखी है और इमली को चूस रहे हैं। चूसिए इमली को। So thinking that tamarind is there and you start licking it. A když vám řekne, že máte tamarind v ústech a začínáte ho cítit, olizovat, और कस के चूसिए इमली को और खाइए इमली। प्लीज ओपन योर आईज। Please open your eyes. otevřete oči. मुंह में पानी आया? Was your mouth Yes. watered? They didn't do it actually because I didn't tell them to. I told them when Gurudev says close your eyes, I didn't tell them close your eyes. So we didn't, I'm sorry, it was my mistake. So do it now. OK, takže zavřete oči. Představte si mentálně tamarind v ústech. गुरुदेव ये लोग इंग्लिश नहीं पता है, वहाँ होती नहीं है। कोई बात नहीं, कच्ची अमिया खाएं। आम, जी गुरुदेव। आम नहीं बोलिए, इनको नहीं आएगा समझ में। ये आम देख नहीं पाएंगे। कुछ और गुरुदेव। खट्टी चीज कोई खाएं जो सबसे खट्टी होती हो। सो Lemon. नींबू, यस Lemon. नींबू। Take lemon. Aha, vemte si, zavřete oči a představte si, že do úst si strčíte citron. Do it. Mentálně ho máte v ústech, cucáte ho. इन लोगों ने हमारे यहाँ बाहर से यूकेलिप्टस, हाँ, वो सब चीज़ें। चितवन सब भेजा, इधर से इमली भेजी है। ऐसे ही बहुत बुद्धा करे गुरुदेव। व्यवहार पूरा किया जाए। वहाँ पर ऐसे ही गुरुदेव हाउंटेड होम्स होते हैं। बुद्धा घर। इमली के पेड़ लग जाएंगे तो इमली और लगा दो, पूरा हो जाए। बुद्धा तैयार हो जाएगा गुरुदेव। उनकी फीडिंग। ओके, प्लीज ओपन योर आईज Otevřete oči. एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। A můžete nám říct svoji zkušenost? मुंह में पानी आया? Was there any reaction? Měli jste někdo nějakou reakci?
Was there any Jo, reaction? a hned se nám spustí sliny. Saliva started. Salivating. Saliva. ठीक। तो आपने मानसिक क्रिया की, उसका शरीर पर तत्काल व्यवस्था में फर्क दिखता है। Anything that you do mentally has direct impact on your physical body. Cokoliv děláte mentálně, má přímý dopad na fyzické tělo. इसलिए हम कुछ भी नकारात्मक या सकारात्मक सोचते हैं, उसका प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर पर तत्काल पड़ता है। That's why whatever we think, positive or negative, either positive or negative, both has direct and immediate impact on our body. Ať už přemýšlíme pozitivně či negativně, obojí, pozitivní i negativní, má přímý dopad na vaše fyzické tělo. एक बात को और उद्घाटित करना चाहेंगे, जैसे आप लोगों ने भी लेमन को मुंह में लाए, रस को, और उसको मानसिक क्रिया के द्वारा उसको टेस्ट को महसूस करने की कोशिश की पुराना आस्वादन के अनुसार, तो कुछ रस मुंह से छूटे। एक्चुअल में भी अगर आप नींबू को उसी तरह मुंह में रखते तो वही रस छूटते जो बिना नींबू खाए रस आ गया मुंह में। करेक्ट? जी। जो लाभ नींबू खाने के बाद वो रस आकर के मिलता नींबू के रस के साथ, जो मुंह का रस है, ग्लैंड से छोड़ती है, फिर वो हमारे आमाशय से होते हुए हमारे जो हमारा जो गैल ब्लैडर है, हमारा जो सिस्टम है, जितना भी एसिडिक हम भोजन करते हैं, हमारा जो बाइल है वो निकल करके हमारे गैल ब्लैडर से और हमारे भोजन को संतुलित करता है, एसिडिक से एल्कलाइन का संतुलन बनाता है कि भोजन क्षारीय हो जाए, अम्लीय ना रहे। केवल एक ही खट्टे फल में ये गुण है, उसका नाम नींबू है, जो अम्लीय होने के बावजूद भी अंदर जा कर के क्षार में परिवर्तित हो जाता है। तो जो रस छूटा, अभी नींबू नहीं खाया है, लेकिन जिस ग्लैंड्स ने रस छोड़ा, लार ग्रंथियों ने, ये वही काम करने वाला है भोजन के साथ, आपके बिना खाए आपके भोजन को क्षारीय बनाने वाला है। ये सिस्टम है। ये मत सोचिए कि हमने आज नींबू के बारे में सोचा, मुंह में पानी आया, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हो गया। आप ऐसे करके भी अपने शरीर में तमाम क्रियाओं में बदलाव ला सकते हैं, केवल आप अपनी मानसिक क्रिया के द्वारा। साधना का यही महत्व है कि आप सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं को रोक देते हैं, साक्षी बनते हैं। तो जो सबसे बड़ी ग्लैंड्स है वो खुलती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म लेता है। फिर उसका रस टपक टपक, कल जो हमने साधना कराया था, बहुत लोगों के मुंह में रस आए होंगे, बहुत लोगों का रस टपके होंगे, लगा होगा मुंह में रस आ गए, आए इधर आए, तो रस आए, रस आए। तो वो जो रस आ रहा है, वो जो सोमरस, सोमरस सोमरस जी, जो बोला जाता था कि बिना सोमरस पिए यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते थे ब्राह्मण, तो लोगों ने उसका अर्थ लगा लिया कि साहब वो तो सोमरस माने शराब की बात हो रही है, शराब पी के हवन करना है जी। या कुछ वैदिक रूप से जो बनाई जाती थी आयुर्वेद के अनुसार, सोमलता एक झाड़ी होती है सोमलता, तो उससे भी बनता था। वो सोमलता असली वाली तो मिलती नहीं, लेकिन मिलती जुलती उससे हल्का प्रभाव बद्रीनाथ तरफ काफ़ी पाई जाती थी सोमलता जी। बहुत ही वो प्रभावशाली होती थी। 15 दिन बढ़ती थी, 15 दिन वो चंद्रमा के अनुसार चलती थी जी, चंद्र से ही संबंधित, चंद्रमा से संबंधित सोम जी, सोमलता, जैसे चंद्र नाड़ी से रस टपका। जी जी। तो उसका बहुत साधना में बहुत उसका सदुपयोग होता था पुराने काल में, जी, तो सहयोग मिलता था जी। तो इसी प्रकार से जो हम भाव हमारे अंदर आते हैं, उस भाव से जुड़ करके वह एक ग्लैंड जरूर सक्रिय होती है जो उससे जुड़ी होती है भाव से जी। जब गहरे भाव में जाते हैं तो वही ग्लैंड्स खुलेगी। क्रोध हल्का फुल्का करेंगे ऊपरी मन से, वो ग्लैंड्स नहीं खुलेगी। गहरे क्रोध में चले जाएंगे वो ग्लैंड्स खुलेगी जरूर जी। कुछ रस निकल के खून में मिल जाएगा,
लाल रक्त कणिकाओं को मारना शुरू करेगा, हम्म, आदमी को धीरे धीरे दुबला हो जाएगा। चिंता करेंगे तो उस प्रकार की ग्लैंड्स खुलेगी, रस निकलेगा, खून मिलेगा, धीरे धीरे लाल रक्त कणिकाएं मरने लगेंगे, आदमी पीला पड़ता जाएगा। जी, ऐसे हर भाव के साथ ग्लैंड्स जुड़ी हुई हैं, वही ग्लैंड्स खुलती है भाव के साथ। तो जब भी आप कोई भाव करते हैं अपने लिए, तो अपने को सुधार सकते हैं अच्छे भावों से। बिल्कुल, जब मैं कहता हूँ अच्छा सोचो, जी, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, जी, तो अच्छे हो जाओ। बिल्कुल, उसका अर्थ यही है जी, कि मानसिक क्रियाओं से हम शरीर पे अपने जी, उसका प्रभाव स्वयं ही डाल सकें, जी। जिसका प्रयोग अभी हम कराएंगे। तो इसीलिए जब हम नकारात्मक चिंतन करते हैं, उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। बाद में हम सोचते हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरे साथ क्यों ऐसा कहाँ हुआ से है? ऐसे हो गया। वो धीरे 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 स्टोर होता 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 2 4 5 साल में ढेर बन जाता है, तो फिर दिखता है। इतने में नहीं दिखता। आज किया बोले कुछ नहीं हुआ। जस्ट लाइक स्लो पॉइजन। ए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल, वेरी नेचुरल, जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना है। कुछ भी सोचने के पहले, करने के पहले हमें इस बात का ख्याल हमेशा रखना है कि इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने वाला है। शरीर में प्रभाव पड़ेगा तो फिर हम उसी अनुसार हमारा शरीर उसको ग्रहण करता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, कर्म भोग, वैसे तो 9 प्रकार से, लेकिन 6 प्रकार से कर्म भोग हमें झेलने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित। कृत्य मन कार्य में भी अनुमोदित। हमने सोच लिया जी, तो बताया ना, भोग बन गया। जी, आपने सोचा नींबू, रस आया, अपना काम कर गया, हम्म, गहरे भाव में उतरे। हम्म, चिंतन किया किसी चीज़ का, चिंता की किसी चीज़ की, भाव उतरा और अपना काम कर गया शरीर को। जी, तो मनसा, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचा, आपके अंदर क्रोध आया, अंदर से बदले की भावना आई, रिवेंज, अंदर हो गया काम आपके। आपका शरीर भोगने के लिए तैयार, भोगेगा उसको जो जी। रस बना है। जी, तो किसी के भी बारे में, अपने ही बारे में, किसी के बारे में कुछ भी मनसा वाचा कर्मणा, सोचा तक, यानी सोच भी लिया किसी के विरुद्ध, भले ही कल आपने नहीं किया खिलाफ उसके, कुछ सोचने मात्र से आपके शरीर में वो घटना घट गई और रसों का जो सेक्रेशन है वो रक्त में गया और आपके शरीर को उसी अनुसार झेलना पड़ेगा। हो गया भोगते। हम्म, तो हम लोग इसी सिद्धांत के आधार पे आज ध्यान करेंगे, जो नहीं। आपने पहले कभी नहीं किया। नहीं। इसी प्रिंसिपल के आधार पे आज का ध्यान होगा। जब आ उ माँ पर ही अभी हम लोग रहेंगे। जब भी हम किसी भी चक्र पे फोकस करेंगे तो सबसे पहले हम डीप ब्रीथ करते हैं कस के। तो हम इस बात की कल्पना करेंगे कि बाहर से बहुत ही शुद्ध, पवित्र, श्वेत ऊर्जा, चमकती हुई श्वेत चांदनी जैसी अंदर ले रहे हैं। यानी हमारे आसपास वो ही सब है, चांदनी जैसा, बिल्कुल एकदम वाइट, चमकता हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ। बाहर ऊर्जा ही ऊर्जा, सकारात्मक है, अंदर लेना है। और जब हम बाहर निकालेंगे या ऊ, तो जैसे कोल तार होता है, गंदा डामर जैसा, वो हमारे उससे निकल रहा है, बाहर जा रहा है और विलीन हो रहा है। इस भाव को रखते हुए हम आज आ उ माँ का
प्रयोग करेंगे। As Guru, और इसका प्रभाव तीनों चक्रों में पड़ेगा, यानी पूरे शरीर और जीवन दोनों पर ही पड़ेगा। चलिए, लेट अस स्टार्ट। सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करेंगे। प्लीज क्लोज योर आईज। Zavřete oči. Straight your spinal cord. Páteř rovně. चेहरे पर हल्की सी स्माइल। Úsměv. दोनों हाथों की मुद्राएं, दोनों उंगलियां हथेली की आपस में बांध लें, गूंथ लें। नाभि के पास रख लें दोनों हथेलियां। और आ से शुरू करेंगे और जो भाव बताए गए हैं ग्रहण करने के और उत्सर्जन के दोनों ध्यान रखिए। जो लोग डिवाइन एनर्जी को ना महसूस कर सकें वो पूजनी बाबा जी को ध्यान कर सकते हैं श्वास ग्रहण करते समय। ओम। आ से स्टार्ट करेंगे तो अपनी हथेलियां नाभि के ऊपर रख देंगे। जब ऊ का उच्चारण करेंगे तो हृदय क्षेत्र में दोनों हथेलियां एक साथ जोड़ के रख देंगे। और जब माँ का उच्चारण करेंगे तो सिर के ऊपर जहाँ चोटी होती वहाँ पर दोनों हाथों की हथेलियां उंगली फंसा कर रख देंगे। सबसे पहले आ से शुरू करते हैं, नाभि पर। ओम। मेरे साथ साथ दोहराएंगे टुगेदर विद मी। ओम। डीप ब्रीथ। Deep breathe. Deep breathe. अब दोनों हथेलियां हृदय क्षेत्र में, चेस्ट में। ओम। डीप ब्रीथ। फील पॉजिटिव एनर्जी। Deep breathe.
अब दोनों हथेलियां सिर के ऊपर, चोटी के स्थान पर, both hands. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. आप पुणे से अपनी दोनों हथेलियों को अपने हृदय क्षेत्र में, चेस्ट के पास पुणे से ले चलेंगे, हार्ट के पास दोनों हथेलियां. Back again onto the heart. Palms. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Again.
पुनः से अपने नाभि क्षेत्र पर दोनों हथेलियां रखेंगे, नेवल। डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ। Repeat. Thanks to Baba and Ma. Thanks for this session. दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, अपनी अपनी आंखों पर रखिए। Do this 3 times, then open your eyes slowly, slowly, very slowly. आई होप आप अपने आप को अच्छा फील कर रहे होंगे। I don't hear, sorry. जस्ट लाइक एम्प्टी बॉडी, एम्प्टी माइंड। अगर ध्यान में बैठने के पहले ये प्रक्रिया कर ली जाए तो रास्ता और अच्छा हो जाता है, सुगम हो जाता है। बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या होता है, इतने सुपर उस पर जाके फिर आदमी की वापस आने की इच्छा नहीं होती। वो तो चलो बुला के आ जाते हैं, फंसते हुए जाके ज़्यादा है जो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बेहोशी में गए और बेहोशी में तो कनेक्टिविटी कम रहती। जब वो प्रतिक्रिया होता है ये क्या आ गया, वो अवेयरनेस का पहचान। मेरे ख्याल से जिनको पहले से भय हो वो बिल्कुल ना करें। Those who are scared, do not close your eyes. शुरू करते हैं। जो लोग यात्रा पे चलना चाहते हैं शुरू करते हैं। अपने पोजीशन में आए, ध्यान की, आंखें बंद करते हुए, स्माइल चेहरे पे, स्पाइन सीधी। Close your eyes, smile, pray to Zavřete Babaji. oči, úsměv. आराम मुद्रा। ज्ञान मुद्रा या हथेलियों की उंगलियों को आपस से फंसा के रखना, जो भी आपको सुगम लगे करना है। एक बार सभी लोगों को जैसे
आंख बंद कर मेरी आवाज़ सुनेंगे सभी लोग। जब यदि लोग फंसेंगे ऊपर कोई भी, तो 3 बार मेरी ओम ओम जब बोलूँगा ओम ओम ओम, तो सारे लोग वापस रहेंगे, आएंगे। इस ध्वनि से सब कनेक्ट रहेंगे, हमारी इस ध्वनि से सभी लोग कनेक्ट रहेंगे। So, वापस आना ही होगा, ये ध्यान रखना है। या कोई आपकी नाभि को टच करेगा तो आपको वापस आना ही होगा। आप सभी आंखें खोल पाएंगे। तो सभी लोग इस साधना में प्रशस्त होंगे। और यात्रा चूँकि गति बहुत ज़्यादा होगी, ध्यान रखें। जब 5000 साल पूर्व दरबार आपको ले गया था साधना में, उस कालखंड में, तो आपकी गति करोड़ों, अगर शब्दों में कहा जाए तो करोड़ों करोड़ों किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड थी, जो आप संभाल नहीं पा रहे थे स्पीड को। उस स्पीड से आप लोग गए थे। ये गति उससे भी 10 गुना ज़्यादा तेज होने वाली है। हम लोग द्वापर से भी पीछे तक यात्रा करेंगे त्रेता युग में, त्रेता की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम द्वापर की यात्रा की थी सबने, महाभारत काल का सब देखा था सबने। अब द्वापर की ओर बढ़ेंगे, द्वापर से भी क्रॉस करेंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पे अपना मुद्रा लगा लेंगे, पालथी लगाएंगे, so get चेहरे पे ready. हल्की सी स्माइल, Připravte se, úsměv. रीढ़ की हड्डी सीधी। अपना ध्यान अपनी नाभि पर, और धीरे 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 ऊपर की ओर, नाभि से चेस्ट पर, चेस्ट से माउथ पर, माउथ से नोज़, देन फॉरहेड पे, कूटस्थ पर, आज्ञा चक्र पर अपने आप को स्थिर करेंगे। ओम। संगीत बजेगा, म्यूज़िक पर सभी लोग फोकस करेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा, कूटस्थ पर, एंड टुगेदर विद म्यूज़िक पूरा ध्यान, पूरा फोकस म्यूजिक पर रहेगा। संगीत से ध्यान पूरी तरह एकाकार करेंगे।
सभी लोग वापस अपने अपने शरीरों में लाए जाएं। सभी लोग वापस होंगे। Say 3 times Om Namah Shivaya. Rub your both palms together and put on your eyes. Do this 3 times. Then open your eyes slowly, slowly, very slowly, very slowly. अपने आसपास देख के बताएं कौन फंसा हुआ है अभी। इस बार पुराने नौजवान तो सब वापस आ गए। कोई फंसा हुआ है? स्वप्निल आ गए वापस? और कोई रह गया? रह गया हैं? एक काम से अटक गया हूँ। हाँ वो तो रहेगा, पहले से था तो रहेगा। अब स्वस्थ दशा में वहाँ रहेगा, ध्यान की अवस्था में रहेगा। अभी भी लग रहा है गुरुदेव एक हाँ, एक एक अंग सबका उस युग में छूट गया, सभी का। वो ध्यान की अवस्था में रहेगा। हर चीज़ पर पल गुरुदेव, सूरज तो था ही नहीं। हर चीज़ बहुत अच्छा, हर चीज़ पर पल। तारे धीरे धीरे करके लाल हो गए, रफ्तार बहुत देर से हरे सुरंग से रफ्तार। आकाश गंगा दाहिने साइड दिखी, लेकिन वो उल्टी घूम रही थी। उसकी गति बाएं से 90 क्लॉकवाइज थी आकाश में। और वहाँ पर कुछ दिखा नहीं, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि 7-8 तपस्वी लीन है। आवाज़ आपकी आ रही, आने का मन नहीं। और अभी भी गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी है वहाँ भी है। यस,
लाखों वर्षों पीछे चले गए, कई लाख वर्ष पीछे आप लोग गए, बहुत पीछे चले गए। अच्छा है। किसको किसको एक्सपीरियंस हुआ? एक्सपीरियंस किसको किसको हुआ? Or had experiences? Yes. Kdo z vás měl nějakou zkušenost? बढ़िया, जबरदस्त। Vai, passa tu, Stefan. Mám jednu zkušenost, jestli můžu. A obrázku bylo mnohem méně, ale střídaly se tam různé vesměs bojové scény a šlo to až někam do nějakého období doby ledové. Tam to někde končilo. Občas jsem měl pocit, že vidím, jak někoho třeba trefím kijem a to bylo zvláštní, ale jinak pocit, že pořád strašně rychle, aniž bych to vnímal, viděl kolem sebe, tak strašně rychle někam frčím. A to je asi zkušenost moje. There were much less pictures than the last time, than the previous time. Most of the scenes I saw, there were fragments of fighting scenes, wars or just clashes, because as it went deeper, so I had a feeling that I am in the Ice Age, and so I smashed someone's head with the club, and then there was something like before I remember we cut throat of some lady being tied to a tree. And these are just the fragments, but otherwise I had a interesting feeling that I am super fast flying somewhere. I couldn't see it, but I felt it actually. I just felt that I'm being towed somewhere, and I was sweating a lot actually. ऐसा लग रहा था जैसे ये बर्फ़ के युग में चला गया हो, आइस एज में, और देख तो नहीं रहे थे लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ रहे हैं, और रास्ते में युद्ध का दृश्य था। इन्होंने भी किसी को पीटा, सर फोड़ा, कूटा, ये सब होते होते, और ऐसा अनुभव में आ रहा था कि जैसे बिल्कुल बर्फ़ के युग में हूँ। Any questions? किसी का कोई प्रश्न? इधर तो सबकी कलम चल रही है, लेकिन उधर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, साधना से संबंधित कोई भी शंका, कोई प्रश्न? Anyone questions? I have a question about erasing the memory. If it was the same effect as we experienced last time during this traveling to 5,000 years, and now it was 10,000 years. इनका प्रश्न है कि क्या जैसे पिछले 5,000 वर्ष पीछे जाने पर उस समय के रोग नष्ट हो गए, तो क्या वैसे ही घटना अब भी घटी कि उस युग में जाकर के तमाम रोग और कष्ट नष्ट हो गए? अभी उस प्रक्रिया में नहीं गए। अब वो प्रक्रिया नहीं रही जी। अभी उस प्रक्रिया में नहीं गए। उस युग में इतनी मारा मारी नहीं थी, क्योंकि आप 10,000 वर्ष पीछे जाने का शाब्दिक अर्थ है कि आप लाखों वर्ष पीछे चले गए, कई लाख वर्ष पीछे चले गए। तो
ये मारा मारी इतना नहीं था। कुछ नहीं बोलते, हर चीज़ बैगनी पर्पल। दुष्ट भी होते थे, वो तपस्वी होते थे। वो भी साधक ही होते थे। केवल सोच का फर्क था। संप्रदाय अपने अपने हिसाब से बने हुए थे, लेकिन सब साधक ही थे, सभी साधक थे जी गुरुदेव, ये उस पीरियड में। अभी तक अंश अटका पड़ा है गुरुदेव। वो रहेगा, वो तो रहेगा, सभी का है, सभी का है अंश में। तो होता ही है, जहाँ भी जिस भी युग में जिस भी कालखंड में आपका जन्म होता है, आज से पीछे हजारों लाखों जन्म हुए हैं, सभी जगह अंश तो छूट ही जाता, रहता ही है, सभी जगह रहता है। बस दरबार ये करता है, जब आपको जिस कालखंड में यात्रा करा देता है, वहाँ पर जिस अवस्था में आप ध्यान की अवस्था में यहाँ से गए, तो वो अंश ध्यान की प्रक्रिया में सक्रिय हो जाता है और हमेशा वो ध्यानस्थ ही रहता है वहाँ, तो उसका प्रभाव आएगा। इसीलिए यहाँ बहुत अच्छा अच्छा फील नहीं होगा। बहुत रूखापन सा है, है रूखापन है, रूखी रोटी हाँ, है, यस, यही है। सूखी रोटी। और उसका प्रभाव आता रहेगा, धीरे धीरे ये प्रभाव दरबार अभी आपके पीछे कर देगा। गुरुदेव, स्टार्टिंग जो हुई थी, सफ़ेद गाय का जो केंद्र है वहाँ पर तेजी से इंटर किए थे। सफ़ेद गाय पूरे कुबड़ वाली, मतलब हाँप अच्छा। वाली, उसके केंद्र से यात्रा सूर्य नाड़ी, उसके अंदर घुस करके फिर यात्रा शुरू हुई। हाँ, ये तो दरबार हमने एक बार का आपको जिक्र किया था प्रसंग का, माता के कि हमने जब पूछा था बाबा से, हाँ, कि बाबा मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ, पहला जन्म कैसे हुआ होगा, तो उत्तर दिया था उन्होंने, यही कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि गाय के पेट से मनुष्य का जन्म हुआ है, पहले मनुष्य के। तो आज अनुभव में ही आया, वापसी यात्रा में खूब तेजी से चक्र बने और उसमें अंदर चले गए और उसके बाद फिर पीछे की यात्रा शुरू। क्योंकि आप पूरी मनुष्यता का अनुभव कर पा रहे थे। जी, ठीक है ना। तो उसका प्रमाण भी हमको मिला जब हमने बताया कि माँ के गर्भ में जिस जीवाणु से बच्चे का लालन पालन होता है, गर्भस्थ शिशु बढ़ता है, गर्भ में पुष्ट होता है, वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो जब माँ के दुग्ध में भी वही जीवाणु होता है जिससे बाहर भी आकर के उसका लालन पालन होता है। जब माँ का दूध पीता है बच्चा, उसमें भी वही जीवाणु होता है। और यही जब माँ को दुग्ध नहीं होता है तो देसी गाय के दूध में भी यही जीवाणु पाया जाता है। पूरे संसार में केवल एक यही ऐसा जीव है, गाय, जिसमें वो पोषक तत्व पाया जाता है, जीव पाया जाता है कि अगर मनुष्य के बच्चे को दूध ना मिले तो देशी गाय के दूध को अगर उसको पिलाया जाता है तो बिल्कुल माँ के ही समान होता है, इसीलिए गाय को माँ कहा गया। I had this question. I explained to Gurudev और that इससे ये सिद्ध होता है कि एक्चुअली में मनुष्य का जन्म गाय के ही गर्भ से हुआ, पहले मनुष्य का जन्म गाय के ही गर्भ से, क्योंकि उसमें वो जीवाणु मौजूद है जी, आज भी। जी गुरुदेव, एक चीज़ और थी कि जो के इसमें जो ऑरा का निर्माण किए थे, डिविनिटी का निर्माण किए थे, उसके बीच में से जब तक चलना चाह रहे थे तो गति नहीं पकड़ रही थी, रुके हुए थे, फिर उसको तोड़ना पड़ा और तोड़ने के बाद फिर स्पीड बनी, नहीं तो कहीं नहीं जा पा रहे थे।
उस चीज़ का उसके ठीक पहले वो निर्मित हो गया था कि चारों ओर पूरे सकारात्मक ऊर्जा, वाइट एनर्जी, उसके घेरे में रह करके आगे की यात्रा नहीं बढ़ पा रही थी। उसको जब तोड़े तब जा कर के इस बार जितनी भी यात्रा आप लोगों की हुई, एक सुरक्षित घेरे में ले जा करके हुई। इसलिए दरबार जहाँ तक आपको ले जाना चाहिए वहाँ तक ले गया। जी, शेल में बिल्कुल, उसके पास से फिर वापस ले आया सभी। जी, जीवन को यात्रा का जो अनुभव है, ये बड़ा अनुभव है। आप सब बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं जो लाखों वर्ष पीछे जाकर के यात्रा करके लौटे। तो वर्तमान ब्रह्मांड में यात्रा करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत ही सरल है, तो बहुत इजी हो गया। जैसे ग्रेजुएट बच्चे से कहा जाए भाई कक्षा 3 का सवाल हल करिए, इसलिए आपको उस यात्रा कराने का अर्थ इतना ही है कि आप लोग इन नीचे कहीं अटके ही ना, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस बड़ा है, आपके जीवन को जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा है, और जो उस कालखंड में जो अंश है वो सक्रिय है साधना में, तो उसका प्रभाव आता रहेगा। तो वो बहुत भारी प्रभाव है, हल्का प्रभाव नहीं। इसलिए अब जब भी ध्यान करेंगे, आंख बंद करेंगे, बाबा माँ को प्रणाम करेंगे, भोलेनाथ को माँ को प्रणाम करेंगे, जैसे ही ध्यान के लिए बैठेंगे तुरंत चल देंगे। अभी इसके पहले जब लोग ध्यान साधना करते हैं, परंपरा में करते हैं, 2-2, 4-4, 6-6 महीने लगे रहते हैं, कोई अनुभव नहीं होता। यहाँ इतने तमाम लोग बैठे हैं, आँख बंद करते ही तुरंत स्पीड चले गए, अनुभव शुरू हो जाते हैं सेकेंडों में। जी, तो बाबा माँ की कृपा है, पूर्ण गुरु की कृपा है, जो सब रास्ते खुले हुए हैं, फटाफट 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 यात्रा चालू। जी गुरुदेव, क्योंकि पहला दिन जो 5000 साल की यात्रा हुई थी, तो उसमें जो रफ्तार बनी और जो दृश्य बनते चले गए, अलग अलग जगहों से गुजरते चले गए, और 10 लाख में जाकर जहाँ पहुँचे, अगले दिन जब आपने कराया तो सीधा वहाँ पहुँचे। हाँ, यस। अब जैसे हम फिर से कराएं पीछे त्रेतायुग की यात्रा, आप लाख में ही पहुँचेंगे जी, सीधा सेकेंड में। जी गुरुदेव, अभी बात करते करते लग रहा है कि जैसे 2 आँखें हैं, हाँ, बस तो बस एकाकार कर रही है। एक वहीं पर उसी रफ्तार से पहुँच गया। गुरुदेव, एक और चीज़ हुआ था कि 2 चांद, चांद तो सैकड़ों हैं, हजारों हैं। वो सुरंग से पहले 2 चांद थे, हाँ, एक इधर एक इधर, उस सुरंग से पीछे पहले जो हरा सुरंग था, और बहुत रफ्तार में पार होता गया, पता नहीं कितने करोड़ों मील की रफ्तार रही होगी। हाँ, बहुत स्पीड में जाते हैं आप लोग। जीवन की यात्रा की गति बहुत फास्ट है, बहुत गुरुदेव। उसको अंकों में नापा नहीं जा सकता है, केवल भाषा के रूप में कहा जा सकता है। जी, तो जैसे जब द्वापर की यात्रा कराई थी दरबार ने आप सबको, तो पहले दिन जाने में थोड़ा टाइम लगा, पहले दिन में समय लगा था। उड़ते उड़ते लगा कि कहाँ जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं, मतलब भयानक गति, जबरदस्त गति। उसमें सवाल उठते, ये कहाँ आ गए, कहाँ है, ये क्या है। और जो दूसरे दिन कराया तो तुरंत पहुँच गए। जी, तुरंत सीधा सीधा ब्लैक होल पे तो वो कालखंड जुड़ गया, सिमट गया। स्पष्ट हुआ गुरुदेव। जैसे ढाल हो, इस हॉल की जिधर ढाल हो, आप एक बाल्टी जल डाल दीजिए, जहाँ जहाँ से होके गुजरेगा 10 दिन बाद आइए, उसका निशान पड़ा होगा। जी, रूट उसको जाने में टाइम देख लीजिए, वहाँ जहाँ तक लास्ट जाएगा पानी पहले दिन, उसमें टाइम लगेगा। सपोज हो सकता है 5 मिनट का समय लगे वहाँ तक पहुँचने में। 10 दिन बाद आइए, फिर वहीं पानी डालिए, 1 मिनट पहुँच जाएगा तरह से, क्योंकि वो रूट बन चुका होगा, पानी के निशान बने रहते हैं। जी, बिल्कुल।
पानी का भी निशान बना रहता है। ऐसे ही यात्रा के निशान, जैसे आप कहीं नई जगह जाते हैं तो आपको पहुंचने में हो सकता है 10 घंटे लगे, दोबारा जाते हैं हो सकता है 8 घंटे लगे। जी गुरुदेव, बिल्कुल। पता रहता है किधर से जाना है। अब चिर परिचित हो गए। हाँ, चिर परिचित रहता जी है। ऐसे ही साधना पथ एक बार बन जाता है जी। तो जीवन के लिए यात्रा सुगम हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो कोई दरबार से कोई लोग क्वेश्चन? दरबार के किन्हीं लोगों को क्वेश्चन तो नहीं बन रहा? आनंद आ रहा है गुरुदेव। यात्रा ही आनंद की है, आनंद के लिए है और आनंद से है और आनंद में है यात्रा। जबरदस्त यात्रा, गहन शांति का आनंद गुरुदेव। बिल्कुल। तो सभी लोग ये एक बार अपना आ ऊ माँ से करके और फिर साधना में बैठे। एक क्वेश्चन आया उज्ज्वल की तरफ से कि हमने ये नहीं बताया कि अपनी स्मृतियाँ कैसे नष्ट करें। मैंने बताया था कि इसका अभ्यास करा रहे हैं और ये भी बताया, ये नहीं बताया कि ऐसे नष्ट हो गए। आप लोगों ने जो आ ऊ माँ का पॉजिटिव एंट्री करके निगेटिव को बाहर किया, यही स्मृतियाँ नष्ट करने का साधन है। क्योंकि जाते समय उसका प्रभाव से गुरुदेव के भाई दरादन बाहर आ रही थी। उसके प्रभाव से इतना नहीं कराते, जी आप इतने लाख वर्ष पीछे नहीं जा सकते थे, जी दम छूट जाती है। जी बिल्कुल। बच्चे पूछ रहे हैं जाते हैं, हाँ देखते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, मेमोरी नहीं। तो मेमोरी डिस्ट्रॉय करने के लिए दरबार ले जाता है। उस कालखंड में मेमोरी बनाने के लिए नहीं ले जाता है। लेकिन गुरुदेव इस यात्रा में ये सब भूल गए। जो द्वापर वाली किसी को याद नहीं रहेगा। द्वापर वाली भूल गए। नहीं, द्वापर वाली तो सब भूल गए, सब लोग। जी त्रेता वाली सब भूल जाएंगे। कभी समय रहा तो सतयुग में ले चला जाएगा, तो वहाँ जो जो आप लोगों ने किया, वहाँ की जितनी स्मृतियाँ हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। बहुत अच्छा है, आप लोग धीरे 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 बढ़ते रहें के कदम। और साधना का अर्थ ही है स्वयं को साधना, बैलेंस करना। साधना कोई क्रिया नहीं है, क्रिया का दृष्टा होना, क्रिया का साक्षी होना साधना है। और जितना हम गहराई से दृष्टा भाव को स्थिर रख पाते हैं, उतना हमारा स्तर ऊंचा होता जाता है। साक्षी भाव जो है वो हमारी आत्मा का विषय है। साक्षी भाव शरीर का विषय बिल्कुल भी नहीं है, ना बुद्धि का विषय है, बुद्धि से परे है। तो आत्मा के बाहर जो चार सहयोगी उसके हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, वो साक्षी नहीं होते। साक्षी उनका केंद्र है। केंद्र में आत्मा नामक तत्व, हम उसका नाम देते हैं आत्मा। जी आत्मा नाम इसलिए देते हैं कि परमात्मा का वो अंश है, जी शिव का अंश है, जी जिसे हम
आकाश तत्व कह सकते हैं, महाआकाश, परम आकाश, जी ऊर्जा, महा ऊर्जा, परम ऊर्जा, कोई भी नाम दे सकते हैं। हर दो तत्वों को बीच में जोड़ के चलने वाली, सृजन या विध्वंस करने वाली जो शक्ति है, उसका नाम है शिव। इसलिए शिव को कहा गया कि वो जन्म और मृत्यु उनके दोनों हाथ में है। जी सृजन विध्वंस दोनों उनके हाथ। तो ये जो तत्व है वो एक निश्चित और अच्छी दूरी बना के रखता है। ये निश्चित और अच्छी दूरी चाहे हमारी उंगलियों के पोर की हो, चाहे कलाई की हो, चाहे गर्दन की हो, या हाथ की कोहनी, कोई भी जोड़ ज्वाइंट है पूरी बॉडी में, अंदर जो अंग हैं उनमें भी अंदर एक दायरा है सबका, एक अंग दूसरे अंग में नहीं मिल सकता। जी जी उनके बीच एक निश्चित और अच्छी दूरी बनी हुई है। ऐसे ही यह निश्चित और अच्छी दूरी प्रत्येक परमाणु के एक एक अंश में बनी हुई है। बिल्कुल। और यह जो निश्चित और अच्छी दूरी चाहे पृथ्वी और सूरज के बीच की हो, चाहे धरती और सूरज के बीच की हो, चाहे जितने भी ग्रह गोल नक्षत्र जितने भी हैं उनकी आपस की दूरी हो, वो एक निश्चित और अच्छी दूरी के कारण ही सुरक्षित रूप से गतिशील हैं, बिल्कुल क्रिया में हैं। जी और जो क्रिया में हैं ये इसलिए क्रिया में है कि जो शिव है, जो कि क्रियाशील नहीं है, क्रिया शून्य है, जी उस क्रिया शून्यता की वजह से प्रत्येक इकाई जो दिखाई देती है वो क्रिया में है, क्रियाशील है। तो हर वो इकाई जो दिखाई देती है विध्वंस होते हुए, सृजन होते हुए, उसके विध्वंस और सृजन का आधार शिव है, शिव ऊर्जा है। शिव का अर्थ होता है जो है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, ना होते हुए भी सभी क्रियाओं का आधार वो है जो नहीं है। जैसे हमें आप सुन पा रहे हैं तो हमारे आपके बीच में जो स्पेस है, जो तरंगें बीच में बह रही हैं, उनके कारण आप हमें सुन पा रहे हैं। अगर ये स्पेस ख़त्म कर दिया जाए तो सब एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, लड्डू बन जाएंगे, अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हमारे चलने फिरने का आधार यही स्पेस है, हवाई जहाज उड़ने का आधार भी यही स्पेस है, हमारे हाथ पैर हिलाने का आधार, हमारी आंखें पलकें झपकाने का आधार भी यही स्पेस है। और यही स्पेस इन हर दो हड्डियों के बीच में है, यही स्पेस धरती और सूरज के बीच में है। इसी को परमेश्वर कहा गया, इसी को शिव कहा गया। साधारण शब्दों में इसे ईश्वर कहा गया, इसी स्पेस को ईश्वर कहा गया। ईश्वर का ही ये सारा ऐश्वर्य है जो दो आंखों से दिखता है। ईश्वर इन दो आंखों से दिखता नहीं, उसकी दृष्टि इधर देखने की, और जो इन दो आंखों से दिखता है वो इस ईश्वर का ऐश्वर्य है बना हुआ। जब ये निश्चित और अच्छी दूरी कम या ज़्यादा हो जाती है तो उसे रोग कहते हैं, रोग बनता है। अगर ये हड्डी की दूरी जो है कलाई की ज़्यादा हो जाएगी तो दर्द होने लगेगा। घूसा मार दिया, कम हो गई तो दर्द होने लगेगा। तो कम या ज़्यादा होना, सूरज का और धरती की जो दूरी है अगर थोड़ी सी कम कर दी जाए, धरती नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही यही जो बीच का स्पेस है वह एक निश्चित और अच्छी दूरी में अपने को बनाए हुए है। प्रकृति, जितने भी जीव जगत हैं, पदार्थावस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, मानव अवस्था जो ज्ञान की इकाई है, ज्ञान से संचालित होता प्रत्येक व्यक्ति, ज्ञान अवस्था,
पिछली जो 3 इकाई हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, ये प्रकृति के अनुरूप हैं। कहीं प्रकृति को नहीं छेड़ते, प्रकृति के अनुसार ही चलते। नदियाँ अपने हिसाब से बहती हैं, हवाएं अपने हिसाब से चलती हैं, पहाड़ अपने हिसाब से बने हुए हैं, ज्वालामुखी अपने आप फटती है, सब कुछ, सारी बरसात अपने आप होती है, सारा कुछ, समुद्र अपने आप हिलोरे मार रहा है। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, एवरीथिंग इन एन ऑर्डर, सब कुछ अपनी व्यवस्था में है। कोई भी एक दूसरे में अवरोध पैदा नहीं करता, सारा को एग्जिस्टेंस है, सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सारा सह अस्तित्व है। केवल मनुष्य ही एक ऐसी इकाई है जो पूरी सृष्टि की व्यवस्था में अवरोध पैदा करता है। पहाड़ काटने का काम आदमी का, ये कोई पशु पक्षी चिड़िया जानवर नहीं करते। पहाड़ सारे काट डालने का काम मनुष्य का, सारे पेड़ पौधे काट डालने का, जंगल काटने का काम मनुष्य का, सारे जितना धरती का नीचे से निकाल के कोयला ऊपर ले आओ, जला डालो, तेल निकाल दो, जला डालो, ये सब काम मनुष्य का। प्रकृति के हर काम में अड़ंगा लगाना, बाधा पैदा करना, ये काम मनुष्य का। इसलिए इस सृष्टि में जब भी कभी विनाश होगा तो सबसे पहले मरने वाली जो इकाई होगी वो मानव इकाई होगी, मनुष्य सबसे पहले मरेगा। जितने भी हम पदार्थ अवस्था में, कभी हम पदार्थ रहे हैं, कभी हम प्राण अवस्था में पेड़ पौधे रहे हैं, कभी हम जीव जंतु रहे हैं, आज ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से हम मनुष्य शरीर में हैं। पीछे जितने भी हमारे जन्म रहे हैं, किसी भी रूप में रहे हैं, उन सब का, सब की स्मृति इस वर्तमान शरीर के साथ संबद्ध है। कारण शरीर में पूरा गठजोड़ है, पूरा जोड़ है। हम आपको यात्रा इसीलिए, दरबार आपको यात्रा इसीलिए करा पाता है, दूसरे आयाम में ले जा करके, दूसरे कालखंड में लाखों वर्ष पीछे ले जाके आपको यात्रा करा पाता है, क्योंकि आपके अंश वहाँ पर मौजूद है। जो आकर्षण है उसमें, आप उन अंशों में, आपके इस अंश के शरीर में निश्चित और अच्छी दूरी कायम ना हो पाने के कारण रोग हैं, कष्ट हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्ट हैं। दरबार जब आपके इस अंश से आपका मिलन कराता है तो एक निश्चित और अच्छी दूरी कायम करता है आपके और उसके बीच में, तो वहाँ से आपको आनंद की अनुभूति होती है। जैसे पिछले महाभारत काल में ये जब युद्ध में थे तो इनके तीर घुसे हुए थे सारे घुटनों में, गर्दन में, यहाँ बैक साइड में तीर ही तीर घुसे हुए थे, और तड़प तड़प के इनकी मृत्यु हुई, सड़गल के सब सड़े, बहुत दिनों मृत्यु इनकी हुई उस युद्ध क्षेत्र में। वो कष्ट दर्द इनको अभी तक बने रहे। सड़गल रहा था और इनके डॉक्टर ने बता दिया कि काटना पड़ सकता पैर। दरबार ने जैसे ही वो स्मृति नष्ट की, उनके उस कालखंड में ले जाके इनका कष्ट चला गया, खत्म। और ये सब पस जो बन रहा था, सारा पस इनका सूख गया है, लगभग अभी 90% में भी कि ये स्वस्थ है इनका पैर। क्या बोलते हैं ये भी, व्हाट डिड ही से? तो अब कैसा है इनका नी? एक योद्धा के रूप में अच्छा युद्ध लड़ा भीष्म पितामह के सहयोगियों के रूप में, दाएं बाएं सेना में, टुकड़ी में, अलग अलग टुकड़ी में। जैसे मेरा के कष्ट थे, ये भी योद्धा थी, पुरुष के रूप में थी उस महाभारत काल में, तो ये भी युद्ध लड़ी। इनको भी जो एक पीछे से तलवार एक थी, पेट से घुस करके और पीछे यहाँ निकली थी, इसलिए जलन होना, दर्द होना, इन्फेक्शंस, ये सारे इनको बने रहते थे, बैक में भी बने रहते थे वेरा को। बट अब नहीं, उस कालखंड में यात्रा के बाद वो कष्ट भी वेरा के नष्ट हो गए।
गुरुदेव इन्होंने उस यात्रा में एक चीज़ और भी बताई थी कि बहुत बड़ा बी हाइव जो मधुमक्खी का छाता था, बट इट वाज लाइक इन दिस शेप एंड नॉट इन दिस शेप, राइट? Yes, and I just meditated, could find it out because that was the army's structure of यस करेक्ट army structure, करेक्ट सही देख and that because you were on the same side, so both of you in your journey saw the beehive, which was actually the but army different battalions army दोनों battalion. Yes. It looked like bee because इतनी भीड़ थी, व्यू रचना वो। व्यू रचना थी वो। गुरुदेव वो आज सुबह देखा था वो कि वो चीज़ दोनों का एक चीज़ कैसा है, तो फिर व्यू रचना देखी कि अच्छा ऐसे व्यू रचना थी। तो आप घुटने ठीक हैं? एनी पेन, एनी प्रॉब्लम्स? नो? और क्या Actually, I had pain in the back since the childhood, and that disappeared, and that disappeared as well yesterday. इनफैक्ट इसके घुटने के अलावा इनको बचपन से कमर में पीछे बचपन से दर्द था, जो जिसके बारे में इन्होंने कभी बताया नहीं क्योंकि बचपन से था, तो कल वो भी चला गया। यस When I was 17, the doctors told me when I get old, if I don't exercise, I will end on a wheelchair because of it. हमेशा स्ट्रेस रहता था वहाँ पे। डॉक्टर ने कहा था कि जब आप बूढ़े होंगे तो अगर आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो आपको व्हीलचेयर की आवश्यकता पड़ेगी। जब ये 17 साल के थे तब इन्हें ऐसा बताया गया। यस And वो छूमंतर हो वो भी गया। चला गया। तो ये सब उस युग की कष्ट थे, इसलिए इस प्रार्थना से नहीं जाते। जी ये दूसरे युग के कष्ट हैं, जी, दूसरे युग के कष्ट। दूसरे युग के कष्ट हैं, इसलिए आपके वर्तमान की प्रार्थना से वो कनेक्ट नहीं हो पाते, हाँ हाँ हाँ। इसलिए नहीं जा पाते। आप जितना रहते हैं वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान के अनुसार आप अपने सारे कष्टों रिलेटेड जितनी यात्रा करके भी आप आए हैं वहाँ तक तो सब हो जाता है आपके संकल्प से। जो युग पर आप पार कर जाते हैं तो फिर वो गुरु कृपा विशेष रूप से जब होती है, ऐसे ही कोई बाबा की कृपा, तब ये सब चीज़ें मैनेज होती हैं। अर्थात गुरुदेव जो युग परिवर्तन जो हो रहा है तो पूरा जो गैलेक्सी सब है कुछ, yes, वो पूरा मूव कर गया, एकदम इसीलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं होते कनेक्ट, ओ फिर उस युग में ले ही जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो जो गुरुदेव जो पूरी गैलेक्सी का आरोहण या अवरोहण है, हाँ उसी क्रम की वजह से इसीलिए परिवर्तन है युग का, होता ही इसीलिए जी। और चूंकि आधार है वो, अब बहुत दूरी हो गई तो रेंज से बाहर चला गया वो बिल्कुल। आधार है। जी गुरुदेव। हाँ रेंज से बाहर, जी फ्रीक्वेंसी से बाहर। फ्रीक्वेंसी से बाहर हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ उठाई बच्चों ने अभी, दो तीन चीज़ें आई हैं जो बात कर रहे हैं कि एक तो हमेशा ध्यान रखिए, लोग कहते हैं ना कि यार हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी ध्यान साधना करते हैं, एक प्रश्न आता है अक्सर, और हम बड़े कष्ट में रहते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रूप से हम कष्टों में, संकट में बने रहते हैं। और जो निठल्ले टाइप के हैं, कुकर्मी टाइप के हैं, हाँ आवारा टाइप, ये बड़े मौज में रहते हैं, इन्हें कोई कष्ट ही नहीं होता, एकदम परफेक्ट। ये मांस के लोथड़े की तरह पैदा हुए हैं और मांस के लोथड़े की तरह सड़ के मर जाएंगे, जो मौज में दिख रहे हैं। लेकिन आपका जो एक आकर्षण पड़ा हुआ पीछे ध्यान साधना का, पिछले आयामों में, पिछले कालखंडों में, पिछले युगों में, वो आपको बार बार आकर्षित करता है। कहते नहीं पूत के पाँव जो है पालने में दिख जाते हैं। अगर वो क्रिमिनल था, आवारा था, तो उस टाइप का उसको भाव बनता है, जो जैसा था उस तरह के भाव उसके आकर्षित करते हैं। फिर वो संगति में आकर के, चूँकि मनुष्य ज्ञान अवस्था का प्राणी है, इसीलिए संगति में आकर के अगर डॉक्टरों के ग्रुप में चला गया डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर के उसमें चला गया तो इंजीनियर बन जाता है, फोटोग्राफर चला गया तो फोटोग्राफी करने लगता है, हवाई जहाज लोग चला गया तो उड़ाने लगता है, और जो गुंडे बन जाते मवाली तो मारकाट करते रहे। जो जहाँ फंस गया, ज्ञान जो मिला उसको, उसका वो पूरा सदुपयोग करता है उस ज्ञान का।
अब वो ज्ञान कैसा है उसके लिए, जिसको ज्ञान मान के बैठा वो सूचना है, उसकी सूचना के आधार पर चलता है मनुष्य। तो जब हम ध्यान साधना पूजा करते हैं तो हम उस साधना पथ से जुड़ने लगते हैं, और वो हमारे शरीर जिन कष्टों में साधना के समय के आखिरी क्षणों में छूटे हैं, कष्टों में या मृत्यु के समय के, जो वो चीज़ें सीधे से फील होने लगती हैं, वो कर्म भोग आने लगते हैं सामने। मैं बोलता हूँ ना, जैसी आप इच्छा करते हैं वो वाली आपके इर्द गिर्द इकट्ठी होने लगती है। वो इच्छाएं है कहाँ से, किसकी इच्छाएं? आपकी ही अनंत इच्छाओं कह लीजिए शब्दों में, वो पड़ी हुई है तमाम आयामों, वही आपको घेरने लगती है उसी टाइप की, और आप वैसा ही फील होने लगते हैं, वैसे करने लगते हैं, वैसे रोगी दिखते हैं। जब गुरु कृपा होती है तो वो कर्म भोग कट जाते हैं, फिर दूसरा खुलता है कर्म भोग का चैप्टर। ऐसे एक एक करके आप अपनी स्मृति नष्ट करते जाते हैं, नष्ट करते जाते हैं, और आप धीरे 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 उस यात्रा की ओर चलने लगते हैं जिसके लिए आपने जन्म लिया है। तो इसलिए कष्ट और रोग आपको महसूस होते हैं, जबकि वो कष्ट और रोग आपके कट रहे होते हैं, उससे जुड़ाव हो रहा होता है उस आयाम में, जैसे था आपको सभी को। तो ये उसके पीछे कारण है, लॉजिक है कि जो ध्यान साधना करते हैं उनके भोग कटते हैं, इसलिए उनको कष्ट आते हैं। लेकिन जब कोई पूर्ण गुरु मिलता है तो एक साथ सबको निपटा देता है सारी कष्ट। एक सवाल आया बच्चों की तरफ से कि अभी जब हम लोग यात्रा कर रहे थे, पीछे यात्रा कर रहे थे, तो हम देख पा रहे थे कि हम बहुत तीव्र गति से, समझ नहीं पा रहे थे कितनी गति ये चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। तो अगर हम चले जा रहे हैं तो वो कौन था जो देख रहा था कि हम चले जा रहे हैं? तो पहले भी हमने कई बार आपका ध्यान आकर्षण किया है कि जो जीवन है वो 5 चीज़ों के संगठन से जो बना हुआ उसको हम जीवन कहते हैं। पहला आत्मा, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, फिर वृत्ति और मन, ऐसे 5 चीज़ें संगठित हैं। जब हम साइंस के आधार पर समझने जाते हैं तो ये पूर्ण संगठित है, पूर्णता लिए हुए जीवन है। इसलिए 2, 8, 18, 32 के रूप में ऑर्बिट पूरा करता है। एक एटम पूर्ण है, ना विघटित होता है और ना संगठित होता है दोबारा से, क्योंकि ये पूर्ण विकसित है, पूर्णता को प्राप्त। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, वो ठीक है, लेकिन जीवन विघटित हो जाता है। तमाम जगह आपको हो सकता है पढ़ने में मिले कि जीवन कभी नष्ट नहीं होता, आत्मा तत्व नष्ट नहीं होता, होगा ही। यही बात बुद्ध ने कह दी थी तो संकट खड़ा हो गया था। तो इस बात को हम लोग यहीं रोक देते हैं छोटे में, नहीं सब किताबें उसी में नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि सबका आधार आत्मा है, ढह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जो बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा की दृष्टि रहती है, केंद्र में आत्मदृष्टि, साक्षी भाव, अक्रियाशील, लेकिन नेत्र उसके ऐसे लगे हैं, देख रहे। तो आत्मा का जो चोर को देखते रहो ना, चोरी नहीं कर पाता। अगर आत्मा की बात सुनो तो फिर बुद्धि नहीं चलती। तो आत्मा की दृष्टि बुद्धि पर, बुद्धि की दृष्टि चित्त पर, और चित्त की दृष्टि वृत्ति पर, और वृत्ति की दृष्टि मन पर। तो हमारा मन है जो चलायमान, जो आप देख पा रहे हैं, जो टेस्टिंग और सेलेक्टिंग के आधार पे हम क्रिया कर पा रहे हैं। तो हमारा जो वृत्ति है ना, वृत्ति दृष्टि रखती है। मन तो एक ही है, अब चला गया मुंबई, अरे वहाँ कहाँ चला गया, इधर। तो किसने देखा? तो वृत्ति ने देखा। वृत्ति में जो तुलन और विश्लेषण की जो 2 क्रियाएं हैं, तुलन 6 प्रकार के, तुलन 6 प्रकार के। एक प्रिय हित लाभ के आधार पर है, 3 क्रियाएं एक साइड हैं, और 3 क्रियाएं एक साइड हैं जो न्याय, धर्म और सत्य के आधार पर।
तो जब आप न्याय धर्म और सत्य के आधार पर देखते हैं, अरे मुंबई कहाँ चले गए, तो तुरंत वापस आओ, वापस आ गए। जब प्रिय हित लाभ के हिसाब से देखते हैं तो आप वहीं पड़े रहते, सोचते रहते हैं, आह वहाँ गए, ये किया, वो करते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है सिवाय नष्ट होने के। तो जब न्याय धर्म सत्य के आधार पर देखते हैं, अरे यार वहाँ कहाँ चले गए, हम तो ध्यान कर रहे थे, फिर वापस आते हैं। फिर तो वो जो देखने वाला तत्व है वो वृत्ति है, वृत्ति निगाह रखती है मन के ऊपर। ऊधो मन न भय 10-20 यही तो कहा, एक ही है। तो उसका यही है समाधान कि सबकी दृष्टि सब पर बनी हुई है, और जब स्वयं की दृष्टि अपने ऊपर बन जाती है, आदमी सभी बाधाओं से, सभी समस्याओं से, सभी प्रकार के कष्टों से, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक कष्टों से मुक्त होकर के अनंत की यात्रा पे निकल जाता है बेरोक टोक। तो जब तक ये कलयुग के दोष हैं तब तक यहाँ रहना है। जैसे ही आप कलयुग से बाहर जाते हैं, आप कलयुग के प्रभाव से दूर हो जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता। आपको लगता वहीं ठीक है, जहाँ भी गए थे बेकार आ गए। इसीलिए लगता है कि आप इस युग के, हर युग का प्रभाव आप पे रहता है। जैसे कोई आदमी कहे कि भैया धरती तो घूम रही है गोल गोल, तो हवाई जहाज ऊपर खड़ा करो इसे, हेलीकॉप्टर, धरती तो घूम ही रही है। और जब अमेरिका आ जाए तो नीचे उतार लो। तो कहीं जाना है नहीं, आराम से उतर जाओ। तो ये वो नहीं कि हाँ आपकी गेंद घूम रही फिर आपने उतार दिया कुछ। पूरा आयाम एक साथ घूम रहा है। ट्रेन के अंदर बैठो, ट्रेन के अंदर आप ऐसे बॉल करो तो हाथ में आएगी, चाहे जितना वो करो। आप सोचो ट्रेन तो जा रही है और बॉल आपने उछाल दी तो कायदे से ट्रेन तो आगे चली गई, तो बॉल वहाँ चली जानी चाहिए, लेकिन फेंको बॉल हाथ में ही आएगी। साथ साथ गति साथ साथ है, गति में जवाब रहते हैं। बॉल भी गति में है ना, आप ही थोड़ा गति में हो। वो जो बॉल ट्रेन के अंदर है वो भी गति में है, रखी है तब भी गति में है। अब झोला रख दो भी गति में है। आपको झोला ऐसे फेंक दें और फिर वहाँ गिरे, हम आगे चली गई ट्रेन। ये काम ट्रेन से बाहर आप करो तो चला जाएगा इधर उधर। ये काम ट्रेन से बाहर करिए तो ट्रेन आगे चली जाएगी, बॉल उधर चली जाएगी। आयाम टूट गया। ऐसे ही एक आयाम है जिसमें हम रहते हैं, तो उसका प्रभाव हम पे रहता ही है। जैसे ही इससे बाहर जाते हैं, इस प्रभाव से दूर हो जाते हैं। तो जैसे कलयुग से दरबार आपको बाहर ले गया, पिछले 2 दिनों में द्वापर में ले गया, आज त्रेता में ले गया खींच के, तो इन से दूरी बन जाती, टूट जाता है, इसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम फिर दोबारा आप लोगों को कलयुग के दोष सक्रिय करते हैं कि भैया लौट आओ सारे। अगर कलयुग के दोष आपके, कलयुग के दोषों को पहले रोकते हैं, दरबार रोकता है, उसके बाद आप यात्रा में निकल जाते हैं। लेकिन जब नहीं आते हो तो फिर सक्रिय करते हैं, भैया कलयुग के दोष इनके सक्रिय कर दिए जाए, तो ये लौटे हैं, अपनी सारी दिनचर्या में भी रहें और अपना ध्यान साधना भी कर पाएँ, परिवार भी देख पाएँ। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी चर्चा हो गई। कोई और अगर पृथ्वी तो गोल है नहीं, आयाम गोल। ना, आयाम बोल, पृथ्वी नहीं, ऊर्जा आयाम। समुद्र तल से ऊंचाई नीचे रहती है, तो आयाम कहने के लिए है गोल जैसी है, वो बॉल जैसी नहीं है, गोल जैसी। आयाम को देख हाँ, आयाम से दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोई चीज़ भी घर्षण कर रही है चीज़ कहीं भी तो गोल हो जाएगी। वायुमंडल से, अंतरिक्ष से घर्षण कर रही है पृथ्वी, तो गोल हो जाएगा कुछ भी चीज़। इसीलिए हर ग्रह गोल, नक्षत्र सब गोलाई लिए हुए हैं, कोई चौकोर में नहीं है। है? कोई चीज़ रगड़ती रहेगी तो गोल, पत्थर गोल हो जाते हैं। आप नदी में देखो, गोल गोल पत्थर पड़े तो एक गोल कैसे हो गई, ये
घूमते गोल गोल घूमते हुए हैं गोल हो गए। इतने नहीं, आप इधर हम लोग जाते हैं, सिरमौर गए मेरे ख्याल से, आगे गए तो वो गोल पत्थर पहाड़ों में थे। कहाँ थे कि हाँ, मंडी की तरफ थे। हाँ, रास्ते में जा रहे थे सिरमौर से आगे, तो पहाड़ों में भी गोल पत्थर अंदर थे। मतलब पहाड़ अगर तोड़ो तो उसके अंदर से गोल गोल पत्थर निकल रहे हैं। अब पहाड़ों में गोल पत्थर कहाँ से आ गए? तो कभी ये पानी इतना भरा रहा है कि इन पहाड़ों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर ऊपर तक पानी पानी रहा है। तो वो अपना कहीं गोल गोल घूमे, फिर जब वो इकट्ठे हो गए पिंड तो दब गए। ये वाले कच्चे पहाड़ हैं। जो ज्वालामुखी वाले पहाड़ हैं बहुत हार्ड हैं, वो लावा की वजह से ज्वालामुखी जहाँ जहाँ फटी हैं और वहाँ पर पहाड़ इकट्ठे ढेर लग गया है, तो बड़े हार्ड हैं पहाड़। जैसे नैनीताल और इधर अल्मोड़ा कुमायूं मंडल जो है पूरा बहुत हार्ड पत्थर है, वल्कैनिक, तोड़ने से नहीं टूटता। तो प्रकृति में सब चीज़ समय के अनुसार है। देखो ना पहाड़ में कई जगह हम लोग देखते हैं परत दर परत जमी हुई है, एक परत की परत दर परत है ना, दिखता है, लगता है किसी ने बिछाई है जैसे परत एक दूसरे पे। तो वाकई परत बिछी है, लाखों करोड़ों साल में परतें बिछी हैं, जिन्हें आराम से आदमी जाता लगाता है वो ब्लास्ट थोड़ा बोले बेच दो कितना अद्भुत प्राणी आदमी, सब बेचे डाल रहा है। और क्या बेच रहा, इससे कहो जरा तुम एक पत्थर बना के दिखाओ इतना बड़ा, नहीं बना सकते। इनसे कहो सोना बना के दिखाओ, नहीं बना सकते। इनसे कहो पेट्रोल बना के दिखाओ, नहीं बना सकते। नष्ट सब करे डाल रहे हैं, नष्ट सब करना है। तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो खोजी है। ये ऐसा पदार्थ है जिस सांचे में डाल दो वैसे ही बन जाता है। तो बहुत अद्भुत है, सभी लोग अच्छे से यात्रा कर पा रहे हैं और अच्छे से कर पाएँ, यही शुभकामनाएं हैं। कल मुझे लगता है कि आप लोगों को निकलना है, कल विदाई का दिन है जो अच्छा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए बहुत कष्ट है बहुत कष्ट है उस युग के। इसलिए प्रथम दृष्टया भी कोई देखेगा आपको चलते फिरते तो लगेगा योद्धा है आज भी। आपको भी देखेगा लगेगा सामुराई जैसे, कि चले तो पैर की आवाज़ भी ना हो, वो वाली फीलिंग रहती। जैसे एक सज्जन हम जानते हैं, उनको पुलिस के बहुत बड़े अफसर थे, वो चलते कितना तेज चलते, उनके जूते की आवाज़ नहीं आती थी। तो हमने उनसे पूछा कि आपको तलवार चलाने में इंटरेस्ट है कुछ? बोले नहीं, मैंने कभी नहीं चलाई। हमने ये नहीं पूछा चलाई कि नहीं चलाई, इंटरेस्ट है? बोले बहुत इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो बहुत है, चलाई नहीं। और बहुत आकर्षित करती तलवार हमको, और मुझे लगता है मैं खूब युद्ध कर सकता हूँ। तो कभी कोई पिछले उसमें रहता है तो फिर वो चीज़ें उसकी रहती हैं। तो और कोई क्वेश्चन? आज का सत्र समापन किया जाए, बाकी आप इन्हें सबको एक्सप्लेन करिएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सत्र को ज्वाइन कर पाए आप लोग।
बाबा माँ के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में, भोलेनाथ की माँ की छत्र छाया में ध्यान करने का प्रयास कर पाए। गुरुदेव सभी पूरी तरह से तृप्त नहीं हो पाए, हाँ तृप्त नहीं हो पाए, हाँ अतृप्त रह गए कि समय निकल गया। मतलब समय का पता ही नहीं चला हाँ, गुरुदेव। समय का नहीं पता। फिर सब योजना बना रहे हैं कि सितंबर में फिर से आने का। कुछ दूसरे लोग भी होंगे कि अच्छा इधर से छुट्टी मिल जाएगी शायद, फिर से फ्लाइट का देख रहे हैं कि अच्छा इस समय सही रहेगा। तो अगली बार हम लोग वहाँ रखेंगे, हरिद्वार। जी गुरुदेव, हरिद्वार रहेंगे पूरा, बहुत अच्छा रहेगा। पूरा पूरा हरिद्वार में। हरिद्वार नेक्स्ट सितंबर Next विल बी time. हरिद्वार, दिस नेक्स्ट सितंबर टाइम विल बी देयर। सितंबर हरिद्वार। यस, वहाँ शांति है और जी एकांत है। जी गुरुदेव। यहाँ तो हरिहर है। वैसे भी 2025 से काफ़ी कुछ अच्छा है। जी गुरुदेव। तमाम कूड़ा करकट से बाहर आ पाएंगे। जी गुरुदेव। तो अगली बार हम लोग हरिद्वार में मिलेंगे, जी गुरुदेव। पूरा समय हरिद्वार में बिताएंगे सब लोग। जी गुरुदेव। सबसे शुभ रात्रि। हरिहर। हरिहर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की। जय जय राधा राधा।